Hello to all my TYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture of immunology second. We have already started the immunohematology chapter. We have studied about the major parts of the chapter, that means the ABO blood group system. We have seen the biochemistry of blood. We have learnt about the RH type of the blood grouping system. We have also seen the Bombay blood group type. Okay, now here on we are going to study some practically done methods which are used in the blood grouping as well as for the detection of any blood related diseases. Okay, so this test that is used for the detection of the different diseases which are related to the blood, it may be in the newborn babies also, which we say infants. It can be used to detect any kind of the hemolytic diseases, that means the one that diseases that leads to the hemolysis, okay, killing of the RBCs, like hemolytic anemia, syphilis, then mycoplasmal infections, then various diseases like systemic lupus, even transfusion. Before doing the blood transfusion, this test is been performed for the confirmation of the blood grouping. Okay, particularly the anti-RH antibodies or any anti D antibodies. Okay, so for that purpose also the Coombs test is performed. Okay, so we'll see this Coombs test, which is a important test in your daily lives also, because this test is one which is been performed for the determining the blood groups, as well as it is used to determine the disease in the person related to the blood. Okay, even in the newborn babies. So let's start with this test. So this test is been discovered by the scientist, as its name suggests. It is been discovered by Coombs. Okay, it is been discovered by the R.R. Coombs in 1945. Okay, he was the one along with his colleagues मोरेंट एंड डी रेस इन 1945. इन तीनों ने मिलके ये टेस्ट डिस्कवर किया था. अगेन दिस टेस्ट इज़ नोन एज द एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट. ओके, इसको एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम एंटी ग्लोबुलिन का यूज़ करते हैं. दैट मीन्स ऐसी एंटीबॉडीज़ जो एंटीबॉडी के अगेंस्ट है, जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं. ठीक है, एंटी आईजी एंटीबॉडीज़, दैट मीन्स ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन के अगेंस्ट है, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़. यहाँ पे आप दो कंसेप्ट देखोगे, एक तो होगी नॉन अग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज़ और दूसरी होंगी एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़. ठीक है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है. नाउ दिस थिंग, दैट मीन्स दिस Coombs टेस्ट इज़ बीन परफॉर्म्ड or it is been discovered first by the Coombs. Okay, Coombs as well as his colleagues Morant and Race. Now this test, firstly when they discovered this test, they didn't knew what to do of this test. They just use it for the detection of the RH antibodies. Okay, because RH antibodies are very weak reacting antibodies, so they discovered this test so as to like do the testing of the RH antibodies. Okay, now this test later on they modified and used for the detection of the HDN, like babies suffering from the HDN, that means hemolytic disease in neonatum. I have also told during the RH type of the blood grouping हमने देखा था कि RH antibodies अगर mother is of RH नेगेटिव एंड द इन्फेंट इज़ ऑफ RH पॉजिटिव, अगर वो फादर की के जीन्स की वजह से वो RH पॉजिटिव हो जाए बेबी, देन दैट बेबी इज़ किल्ड. फर्स्ट प्रेगनेंसी में इट इज़ सेफ, बट ड्यूरिंग द सेकंड प्रेगनेंसी द बेबी गेट्स किल्ड. तो ये ना हो, इसके लिए पहले Coombs टेस्ट की जाती है. अगर मदर जो है पॉजिटिव है RH नेगेटिव है एंड द इन्फेंट और द न्यू बॉर्न बेबी और द बेबी विच इज़ अबाउट टू टेक बर्थ, अगर वो पॉजिटिव है तो कुछ रिएक्शंस होती जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. तो ये ना हो, इसके लिए ये टेस्ट की जाती है कि प्रेगनेंसी से जो है कुछ नुकसान ना हो या फिर वो अवॉइड किया जा सकता है कि नहीं. फॉर दैट पर्पज़ ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है. सो दिस टेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वन, सो यू हैव इट इन योर सिलेबस. नाउ इफ़ वी see, this test is known as what? एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट किया जाता है ऑफ दी एंटीबॉडीज़. ओके,
ऐसे एंटीबॉडीज़ जो एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट है या किसी इम्यूनोग्लोबुलिन के अगेंस्ट है, मतलब एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनाई गई एंटीबॉडीज़, दैट इज़ नोन एज एंटीग्लोबुलिन। ओके, तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है AHG का, दैट मीन्स एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन इन शॉर्ट एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन के अगेंस्ट है या किसी एंटीबॉडी के अगेंस्ट है, और पर्टिकुलरली ह्यूमंस में, सो इट इज़ नोन एज द AHG। ओके, सो नाउ दिस रिएक्शन और दिस कूम्स टेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है डायरेक्ट वन और एक होती है इनडायरेक्ट वन। ठीक है, डायरेक्ट को वन स्टेज कहा जाता है, दूसरी जो है इनडायरेक्ट को इट इज़ नोन एज दी टू स्टेज। ओके, अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, डायरेक्ट मतलब क्या कि डायरेक्टली कोई चीज़ की जाती है जिसमें कोई मीडियम नहीं लगता या फिर कोई बीच में कोई चीज़ नहीं डाली जाती, then we call it as a direct. And indirect means what? If we add something in between, if we do the addition of some kind of a medium to perform the test, then we call it as the indirect one. Okay, so the principle behind this test, now we need to know what is the principle that is been employed for this test, कि ये सब टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, कि इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग, अब क्या होता है ना, कुछ ऐसी हमारे आरबीसीज हो, जैसे हमने अग्लूटिनेशन का जब डेफिनेशन देखा था, वी हैव सीन कि अग्लूटिनेशन मतलब क्या, कि कोई पार्टिकुलर एंटीजन है और वो क्या हो जाता है, एंटीबॉडीज़ की मदद से जो है क्लम्प फॉर्म करता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज द अग्लूटिनेशन। तो ये अग्लूटिनेशन था, लेकिन क्या होता है कभी कभी एंटीजन जो है ब्लड के, सपोज आरबीसीज, ओके, वो थोड़े से दूर है एक दूसरे से इन द सैम्पल, और हमारे बॉडी में भी, दैट्स वाई आल्सो। और ये भी केस हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो जिसकी वजह से क्या होता है, ये अग्लूटिनेट नहीं कर पाते आरबीसीज को। ठीक है, अभी बाउंड तो हो जाते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं, दैट मीन्स वो एंटीबॉडीज़ बाउंड हो जाते हैं, लेकिन वो अग्लूटिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, हमारे ब्लड में लाइसिस करते हैं, सेंसिटाइजेशन करते हैं, बट वो लोग अग्लूटिनेशन नहीं कर पाते। एक तो दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो ये एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंट वे में है, या तो फिर आई वुड से कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी चेंज है नॉर्मल से, जो अग्लूटिनेशन के लिए लगती है उससे थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज है, तो ये हो सकता है रीज़न। तो ये सब करने के लिए अब ऐसी एंटीजन्स को कैसे अग्लूटिनेट कर सकते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका सॉल्यूशन, पर्टिकुलरली कुम्स एंड हिज कलीग्स, उन्होंने क्या किया कि एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया, ह्यूमन की जो एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, ह्यूमन में जो अपने ही सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ, अब मुझे डिटेक्ट करना है RH के लिए, तो मैंने क्या करना है, RH की जो एंटीबॉडीज़ होती है हमारे अंदर ही होती है, वो एंटीबॉडीज़ को क्या किया, रैबिट में डाला, और रैबिट में डालने के बाद उस रैबिट ने क्या किया, इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, किसकी एंटीबॉडीज़, हमारी एंटीबॉडीज़, उसके अगेंस्ट नई एंटीबॉडीज़ बनाए। अब ये एंटीबॉडीज़ कौन सी होगी, एंटी RH एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटी RH एंटीबॉडीज़ के एंटीबॉडीज़, दैट मीन्स एंटी IG। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, पहले हमने क्या किया, ह्यूमन में से RH एंटीबॉडीज़ निकाली। ठीक है, RH एंटीबॉडीज़ है, वो एंटीजन नहीं बोला है मैंने। एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन जो किस पे प्रेजेंट है, RBC पे। ठीक है, RBC पे जो प्रेजेंट है, हमारी बॉडी से RBC पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसकी एंटीबॉडी बनाई। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाने के बाद वो किस में डाली, रैबिट में, और रैबिट में क्या प्रोड्यूस हुई फिर इट प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ व्हाट, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट एंटीबॉडी, जो एंटी RH की एंटीबॉडी है उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो साइंटिस्ट को चाहिए थी, और उन एंटीबॉडीज़ को क्या बोला जाता है, एंटी IG। ओके, या तो फिर ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटीजन, ओके, या फिर ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। नाउ ये जो एंटीबॉडीज़ है इसी को कहा जाता है कुम्स रिएजेंट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि कुम्स रिएजेंट होता क्या है, तो वो क्या होती है, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ हो सकती है, या तो हम कह सकते हैं उनको ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। ठीक है, या फिर एंटी ग्लोबुलिन, ओके, ह्यूमन एंटी ग्लोबुलिन, ये भी आप इनको कह सकते हैं।
ह्यूमन एंटीग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये सब जो होती है दैट इज़ द कूम्स रीएजेंट। नाउ इसकी मदद से पूरी टेस्ट की जाती है। जो ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती है दैट इज़ एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़, या तो उनको एंटीग्लोबुलिन कहा जाता है। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पूरे रिएक्शन में, इसलिए इनको बोला जाता है व्हाट, कूम्स रीएजेंट। तो आपको याद रखना है कूम्स रीएजेंट। नाउ इसके बाद अब क्या किया जाता है, अब क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया वो लोग अग्लूटिनेट नहीं हो पाते जस्ट उस पे एंटीबॉडीज है, ठीक है। तो अब पहली जो टेस्ट है दैट इज़ द डायरेक्ट कुम टेस्ट, ठीक है। मैं आपको इसका डायरेक्टली कुम टेस्ट पे जाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कुम्स रिएजेंट क्या होता है, रैबिट में क्या किया जाता है, ह्यूमन की एंटीबॉडीज डाली जाती है जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, मतलब उस ह्यूमन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और वो यूज़ की जाती है दैट इज़ द कूम्स रिएजेंट, ठीक है। उनको एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन कहा जाता है, ये वर्ड आपको याद रखना है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ठीक है। दिस इज़ द एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ ओके, नाउ हम देखेंगे दी डायरेक्ट कुम टेस्ट, ओके, सॉरी, डायरेक्ट कुम टेस्ट। अब बहुत इजी है ये टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि वो आरबीसी जो है वो बस होती है एंटीबॉडीज से बाइंड, लेकिन वो लोग अग्लूटिनेट नहीं कर पाते, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, ठीक है, या लैटिस फॉर्मेशन नहीं हो पाता, एंड वो लोग जो है क्लम्पिंग नहीं कर पाते, बस सेंसिटाइज हो जाते हैं, बाइंड भी हो जाते हैं, रिएक्शंस भी लेते हैं, करते हैं, बट अग्लूटिनेट नहीं हो पाते। तो यही चीज़ जो है हमें डिटेक्ट करनी है बेसिकली डायरेक्ट कुम टेस्ट, जिसको डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो किया क्या जाता है, ये जनरली जो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट है वो सपोज एक तो ह्यूमन जो इम्यूनोहेमोलाइटिक डिसीज़ है, जो आई वुड से एनीमिक उसको बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है, इम्यूनोलाइटिक एनीमिया। तो ये जो एनीमिया है या फिर किसी मदर का या फिर किसी चाइल्ड बेबी का, ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था एक RH निगेटिव मदर है, उसका इन्फेंट या फिर उनका जो फीटस है दैट इज़ द RH पॉजिटिव। तो वो फीटस जो है फर्स्ट टाइम तो सर्वाइव कर लेगा, सेकंड टाइम वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इट विल सफ़र फ्रॉम दी ह्यूमन हेमोलाइटिक नियोनेटल डिसीज़, ओके। तो ये जो डिसीज़ है हीमोलाइटिक डिसीज़, हीमोलाइसिस भी कह सकते हैं हम इसको, जो हीमोलाइटिक डिसीज़ है उस पर्सन में जो या फिर वो इन्फेंट में जो होती है उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, वो प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं डायरेक्ट टेस्ट, ओके। तो डायरेक्ट टेस्ट में क्या किया जाता है, तो वो जो नॉट न्यूबॉर्न बेबी, जो फीटस होता है, ठीक है, दैट फीटस का ब्लड लिया जाता है, ओके, ब्लड लिया जाता है। और ब्लड में ऑब्वियस सी बात है अगर वो पेशेंट डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उसके जो आरबीसीज है, किसके, उस इन्फेंट के जो आरबीसीज है दे आर गोइंग टू हैव व्हाट, द एंटीबॉडीज़, किसकी एंटीबॉडीज़, दैट RH एंटीबॉडीज़, ठीक है। RH एंटीबॉडीज़ क्यों, वो मदर से आती है, ठीक है, मदर की बॉडी प्रोड्यूस करती है और वो उस इन्फेंट के आरबीसी को जाके बाइंड करती है, ठीक है, RH एंटीजन को। इसकी वजह से क्या होता है, वो डिसीज़ हेमोलाइसिस जो है वो होता है, एंड दैट्स व्हाई द बेबी गेट्स किल्ड। तो ये ना हो इसलिए क्या किया जाता है, ये टेस्ट की जाती है। इसमें क्या होता है फिर, ऑब्वियस सी बात है अगर पॉजिटिव टेस्ट आया तो उसके बेबी के जो आरबीसी है उस पर होगी RH एंटीबॉडीज़, और यही हमें डिटेक्ट करना है कि वो है कि नहीं बाउंड, ठीक है, ये आरबीसी में जो बाउंड है ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, इन्फेंट का ब्लड सैंपल लिया, ठीक है। ब्लड सैंपल में क्या होगा, आरबीसीज होगी जिसपे RH एंटीबॉडी जो मदर से आई है वो बाइंड होंगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये बाइंड है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इस सैंपल में ऐड की हमारे कुम्स रिएजेंट को, कौन सा है कुम रिएजेंट, ह्यूमन एंटीग्लोबुलिन, ठीक है। अब ह्यूमन एंटीग्लोबुलिन ऐड करने के बाद अब क्या होगा, ये जो ह्यूमन एंटीग्लोबुलिन है ये एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट, ये जो एंटीबॉडी बाइंड हुई है ना मदर की RH एंटीबॉडीज़, इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो अब ये ह्यूमन ग्लोबुलिन जो है वो क्या करेगा, एंटीग्लोबुलिन वो इन एंटीबॉडीज़ को क्या करेगा,
बाइंड होगा, ठीक है। ऐसे बाइंड होगा कि दो एंटीबॉडीज़ को एक साथ बाइंड होगा, ठीक है। और इन दोनों को एंटीबॉडीज़ के साथ साथ उन पे बाइंड जो एंटीजन्स है उनको भी साथ लाएगा, और ये जो पूरा आरबीसी है इनको क्लम्प करेगा, ठीक है। ये क्लम्प करेगा, इसका मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हो रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस टेस्ट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है, और ये किसके अगेंस्ट है, प्राइमरी एंटीबॉडी की जो आरबीसी पे बाइंड है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, उनके अगेंस्ट ये एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन है, ठीक है। तो यही एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटीबॉडी क्या करने वाली है, ये जो आरबीसी पे जो आरएच एंटीबॉडीज़ बाइंड है उनको बाइंड करेगी, उनके साथ साथ आरबीसी का भी क्लम्पिंग हो जाएगा, और ऐसे हमें अग्लूटिनेशन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होती है डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट, जो जनरली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हम करते हैं वो करने से पहले ये डिटेक्ट किया जाता है, ये टेस्ट की जाती है, या तो फिर जनरली वो जो आरएच एंटीबॉडीज़ की वजह से जो रिएक्शंस होती है या डिसीज़ होता है, दैट इज़ द हीमोलाइसिस, जो न्यूबॉर्न या फिर न्यूली इन्फेंट में होता है, तो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसका डिटेक्शन करने के लिए कि उस इन्फेंट में वो डिसीज़ है कि नहीं, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ये टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट। अब डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट में प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ किया कैसे जाता है। पहले इन्फेंट की जो है आरबीसी ली जाती है, ठीक है। आरबीसी को वॉश किया जाता है ताकि जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ है या फिर जो उसकी नेचुरली एंटीबॉडीज़ है अगर वो बाउंडेड है तो वो निकल जाए। हमें क्या चाहिए, आरएच एंटीबॉडी के साथ आरबीसी, ठीक है। अगर हो तो, नहीं हो तो इट इज़ अ गुड थिंग, बट अगर हो तो हमें यही चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके वॉशिंग के बाद वी आर गोइंग टू ऐड टू द सैम्पल दी एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ओके, तो या फिर एंटी ग्लोबुलिन, ओके। ये ऐड करने के बाद इसको इंक्यूबेट करना, इंक्यूबेट करने के बाद वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व या फिर इनको सेंट्रीफ्यूज करना एंड देन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आपको अग्लूटिनेशन दिखा देन वी कैन से कि ये जो फीटस है इट इज़ सफरिंग फ्रॉम द हीमोलाइटिक एनीमिया और हीमोलाइसिस, ओके। सो वी कैन से कि ये बेबी इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिसीज, तो हम आगे के मेजर्स ले सकते टू प्रिवेंट इट या फिर टू क्योर इट, ओके। तो ये टेस्ट की जाती है फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करना है। अग्लूटिनेशन क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने डाली, एंटीग्लोबुलिन डाला, उसकी वजह से जो पहले के एंटीबॉडीज है वो इजीली जो है होल्ड अप हो सकती है, उनकी वजह से अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो हमें नेचुरली ब्लड में ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स इट, हमें ये करना है एंड दैट्स द टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट अग्लूटिनेशन टेस्ट और द डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट और डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, ठीक है। कुछ नहीं, हमें बस अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करना है बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि उसके बॉडी में जो है थोड़ी थोड़ी एंटीबॉडीज़ आ चुकी है मदर की, तो हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो आगे डॉक्टर फिर वैसे मेजर्स ले लेंगी। सो दैट इज़ द टेस्ट। अगेन हमें ट्रांसफ्यूजन करना है ब्लड का, तो हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस पेशेंट की या फिर वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो चुका है। अगर सपोज हमने ब्लड दिया है, गलती से हमने अलग ब्लड दे दिया, तो क्या हो सकता है उस पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए वी यूज़ द डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट, ओके, दैट्स इट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनडायरेक्ट टेस्ट कैसे की जाती है, ओके, थैंक यू।